Hi everyone, this is Nehal Baradia, a undergraduate at IIT Delhi. आज हम पढ़ने जा रहे हैं Werner theory of coordination compound, that is in chapter coordination compound of 12th chemistry. Okay, let's begin. सबसे पहले हम थोड़ा इस बारे में पढ़ लेते हैं कि who was Werner. Werner was born on December 12, 1866 in Mulhouse, France, and was the first to formulate idea about structure of coordination compound. He became the first Swiss chemist to win Nobel Prize in 1930 for his work on the linkage of atom and the coordination theory. He made several complex compounds and studied their property, which raised him to give some theory about this complex semi-coordinate compound. वर्नियर ने कुछ कंपाउंड्स को बनाया, कुछ कंपाउंड्स पे वर्क किया, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया, जिन सबको स्टडी करने के बाद उसने कुछ थ्योरीज दी ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सीमिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड. आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई वी कॉल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आल्सो एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. हम क्यों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को? बिकॉज इन द वेरी बिगनिंग, in the 18th century, जब इस पर रिसर्च स्टार्ट हुई थी, they are seeming very complex. Their chemistry is seeming very complex to the researchers because उनका behavior कुछ different था, जो expected behavior से बहुत different था. So इसलिए हम coordination compound को complex compound भी कहते हैं. Okay, let's work over a problem. In a series of compounds of cobalt plus 3 fluoride with ammonia, it was found that some of fluoride ion could be precipitated as AgCl by adding excess silver nitrate, that is AgNO3 solution in cold, but some fluoride ion remained in solution. Also, okay, first I explain this. हमने क्या किया, बहुत सारे कोबाल्ट फ्लोराइड की हमने बहुत सारे कोबाल्ट फ्लोराइड का कंपाउंड बनाए विद अमोनिया. ओके, मतलब उसमें COCl3 तो है बट सम अमाउंट ऑफ अमोनिया भी है. ओके, एंड इन कंपाउंड में हमने क्या देखा? इट वाज फाउंड दैट सम ऑफ फ्लोराइड आयन कुड बी प्रेसिपिटेटेड एज AgCl. हमने देखा कि इन कंपाउंड्स में कुछ आयन्स तो प्रेसिपिटेटेड हो जाते हैं as AgCl when we add excess of AgNO3 solution to them, but कुछ क्लोराइड आयन अभी भी सॉल्यूशन में ही है, means they are not precipitated as AgCl. Okay, also one more interesting observation जो हमने देखी was in all these compound uh, all these compound contain same amount of chlorine but still they have different number of ion in solution. हमने देखा कि because वो compound तो cobalt fluoride with ammonia that is COCl3.XNH3 था, but फिर भी वो सारे different मोल ऑफ अमोनिया दे रहे थे, different मोल ऑफ क्लोरीन दे रहे थे, different मोल ऑफ क्लोरीन आयन दे रहे थे in solution. Also they are behaving as different electrolyte. They are not behaving as same electrolyte. Okay, observation. Let's have a look at this observation. जो मैंने ऊपर बताया वही observation में लिखा, but it is quite more easy to explain. So let's start. मैंने यहाँ कंपाउंड एंड ब्रैकेट में उसका कलर लिख रखा है. इधर मैंने लिखा है मोल्स ऑफ पीपीटी ऑफ AgCl जो बनेगी by adding 1 mole of compound. Okay, means excess AgNO3 के साथ जब रिएक्शन हो रही है 1 mole of this compound, तो कितने मोल ऑफ पीपीटी ऑफ AgCl बने हैं इसका डेटा मैंने यहाँ लिख रखा है. ओके, एंड हियर इज द सॉल्यूशन कंडक्टिविटी कॉरस्पॉन्ड्स टू. ये रेशियो किस चीज का है? ये रेशियो है नंबर ऑफ कैटायन टू नंबर ऑफ एनायन. ओके, जब हम इस तरीके से कंडक्टिविटी लिखते हैं, सो दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन टू नंबर ऑफ एनायन. ओके, not to the total charge of cation to total charge of anion because that ratio is always 1.
कोई कंपाउंड इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, सो जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, ओके। सो हमेशा चार्ज का रेशियो तो 1:1 ही होना, बट हियर व्हाट इज दिस, दिस इज द नंबर ऑफ कैटायन to number of anions, okay, do remember this. I'm starting from here. Let's first discuss about this compound, okay. This is cobalt chloride dot 6 ammonia. Here we have, sorry, here we have a COCl3 group. Here we have a cobalt, 3 chlorine and 6 ammonia in this compound, in the empirical formula of compound, and the color of this compound is yellow, okay. जब मैं इसके अंदर मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैंने इसमें एक्सेस AgNO3 को ऐड किया तब मुझे 3 मोल ऑफ AgCl PPT मिला, ओके। एंड ये हमारा सिंपल ऑब्जर्वेशन होना भी चाहिए था, बिकॉज हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ 3 क्लोरीन आयंस है, 3 मोल ऑफ क्लोरीन आयंस है। तो अगर मैं एक्सेस AgNO3 ऐड करती हूँ तो इट शुड गिव अस 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, ओके। एंड जब इसको, इस सॉल्यूशन को हम किस में डालते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में, या जब इस कंपाउंड को एक्वा सॉल्यूशन में डालते हैं या इसकी कंडक्टिविटी मेजर करते हैं, तब हमने ये नोटिस किया दिस इज बिहेविंग एज अ 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। व्हाई? क्योंकि हम देख सकते हैं अगर मैं इसे डालूंगी तो यहाँ अमोनिया ग्रुप तो न्यूट्रल है इलेक्ट्रिकली, and this is cobalt plus 3 and there is 3 chlorine minus ion. So this is behaving as a 1:3 electrolyte because cobalt plus 3 एक है and 3 chlorine minus, okay. But now this is a ये observation तो हमें लगता है कि okay this is okay, but when I discuss about this you find there is something different. This is a compound cobalt chloride dot 5 ammonia, which is purple in color. See, they all are different color, are of different color. The color arises of a different reason. We will discuss the reason of color after some lectures. Okay, let's first focus this. Cobalt chloride dot 5 ammonia. मैंने ऑब्जर्व किया कि जब मैंने इसमें एक्सेस AgNO3 डाला, एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डाला, तो मुझे 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट नहीं मिला। I got 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, ओके। मतलब ऐसा कि सिर्फ 2 क्लोरीन आयन है ना, वही पीपीटी, वो ही 2 मोल ऑफ क्लोरीन आयन ही यहाँ से प्रेसिपिटेट में जा रहे हैं। जैसे कि 2 मोल ऑफ क्लोरीन आयन ही आयनाइजेबल हो और जो एक रहा हुआ क्लोरीन है वो अपनी रिएक्शन दे ही नहीं रहा हो, ओके। एंड एक और ऑब्जर्वेशन, जब मैंने सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर की, मैंने इस कंपाउंड की सॉल्यूशन की, जब कंडक्टिविटी मेजर की तो क्या मिला कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैटायन टू नंबर ऑफ एनायन इज 1:2। पर अगर मैं सोचूं तो ये रेशियो क्या होना चाहिए, तो 1:3, बिकॉज यू कैन सी हियर, अगर मैं नॉर्मल अप्रोच से जाऊं, जो हम हमेशा एक कंपाउंड को देख के नॉर्मल लगाते हैं कि यहाँ 3 न्यूट्रल अमोनिया है, एक कोबाल्ट प्लस 3 है और 3 क्लोरीन माइनस है, तो ये 1:3 इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए था। बट नो, हियर दिस इज नॉट द केस, ये बिहेव कर रहा है 1:2 इलेक्ट्रोलाइट के तरीके से, ओके। Now, let's talk about the third compound. This is cobalt chloride dot 4 ammonia, which is green in color. Okay. अब इसको भी देखें तो इन सब में सेम अमाउंट ऑफ क्लोरीन है, देखें तो सेम अमाउंट ऑफ क्लोरीन है। अगर मैं इस कंपाउंड का 1 मोल लेती हूँ, so they all have same amount of chlorine, but फिर भी if I added excess AgNO3 to this compound, I got only 1 mole of AgCl. मिलना तो नॉर्मली अगर मैं सोचूं तो 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट मिलना चाहिए था, बट नो, आई एम गेटिंग ओनली 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, ओके। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस इज बिहेविंग एज अ 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम देखें इन सब कंपाउंड्स को, बिकॉज दे हैव आयनिक पार्ट सेम इन ऑल द 4 कंपाउंड, जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आयनिक पार्ट। तो अगर हम देखें यहाँ आयनिक पार्ट तो 4 कंपाउंड्स में, इन चारों कंपाउंड्स में जो आयनिक पार्ट है दैट इज कोबाल्ट क्लोराइड इज सेम, ओनली अमोनिया वेरी,
only the neutral atom, that is ammonia, vary. But फिर भी ये they are behaving as different electrolyte in solution. मतलब there is something different. जो हम सोच रहे हैं उससे कुछ different है. You can see this compound and this compound, the empirical formula of these two compounds are seeming same. हम ही देख सकते हैं कि कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 4 अमोनिया, कोबाल्ट क्लोराइड डॉट 4 अमोनिया, पर डिफरेंट क्या है? कलर. दिस इज ग्रीन एंड दिस इज वायलेट. ओके, दे आर नॉट द सेम कंपाउंड. देखने पे तो लगता है कि दे आर सेम कंपाउंड. अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से देखें, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर पे ना जाएं, तो हमें लगता है दे आर सेम कंपाउंड, बट दे आर डिफरेंट कंपाउंड, क्योंकि इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, बिकॉज कलर दोनों का क्या है? डिफरेंट है. ओके, बट they are like they are such compound कि when I add AgNO3, excess AgNO3 to both compound, I got same mole of AgCl. ये भी मैंने देखा था कि क्या दे रहा था? 1 mole of AgCl, sorry, 1 mole of AgCl precipitate दे रहा था and behaving like a 1:1 electrolyte. Similarly, this is also behaving like a 1:1 electrolyte or giving 1 mole of AgCl precipitate. Okay. अब जब हमने पढ़ा, अब सबके मन में एक ही क्वेश्चन है, हाउ दीज ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन, कि हम कैसे इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. बिकॉज वन थिंग इज वेरी क्लियर, एक बात बहुत क्लियर है कि प्रैक्टिकल डेटा गलत नहीं है. मैंने जो ऑब्जर्व किया वो गलत नहीं है. जो अप्रोच मैंने लगाई इन सबको अपने हिसाब से फिट करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 3 क्लोरीन है, 1 कोबाल्ट है, तो 1:3 होना चाहिए. मे भी वो मेरी अप्रोच गलत हो सकती है, मैं उसे शायद किसी गलत तरीके से सोच रही हूँ. जो मुझे लग रहा था कि नॉर्मली उसको आयंस के हिसाब से डिकम्पोज हो जाना चाहिए, एस कोबाल्ट प्लस 3 एंड 3 क्लोरीन माइनस, मेरी अप्रोच ही गलत हो सकता है, बिकॉज प्रैक्टिकल डेटा उसके सपोर्ट में नहीं है. ओके, सो Bonnier ने इस पे बहुत सोचा, and then he gives that these observation can be explained if first 6 group in all compound, either chloride or ammonia molecule or both remain bonded to cobalt ion during the reaction. That is 6 group in all are ionizable and rest all are ionizable. Okay. 6 group in all are non-ionizable and rest all are ionizable. Okay. उसने बोला कि let's have a look at here. Okay. कोबाल्ट से जो बॉन्डेड सारे ग्रुप है, जैसे यहाँ कोबाल्ट से 3 क्लोरीन बॉन्ड है एंड 6 अमोनिया बॉन्ड है. ओके, टोटल कितने ग्रुप बॉन्ड है? 9. ओके, यहाँ कितने बॉन्ड है? 8. यहाँ है 7. यहाँ है 7. तो उसने बोला कि ये तभी ऑब्जर्वेशन तभी एक्सप्लेन हो सकती है जब कोबाल्ट से 6 ग्रुप ऐसे इन 9 में से ऐसे 6 ग्रुप तो हो जो क्या हो? नॉन आयनाइजेबल, मतलब जो सोल्यूशन में आयनाइज नहीं हो रहे, एंड जो रहे हुए ग्रुप है, जो रेस्ट ग्रुप्स हैं, वो ऐसे हो जो आयनाइजेबल हो. यहाँ भी सेम, इन 8 में से 6 ग्रुप तो ऐसे हो जो नॉन आयनाइजेबल या जो कोबाल्ट से बॉन्डेड ही रहेंगे, एंड जो रहे हुए डेट इज 2 ग्रुप ऐसे हो जो क्या हो? आयनाइजेबल. यहाँ भी 7 में से 6 ग्रुप तो ऐसे हो जो हो नॉन आयनाइजेबल, एंड जो रहा हुआ 1 ग्रुप है डेट if that group is ionizable. Okay, so if given compound are formulated as हम ये बताना चाह रहे हैं कि these observation can be explaining अगर जो पहले वाले compounds, जो ये 4 compounds है, जो ये 4 compounds है, अगर इनको formulate ऐसे किया जाए, कैसे? as this. The cobalt fluoride dot 6 ammonia, that is yellow in color, अगर ये कंपाउंड ऐसे एग्जिस्ट करता है, ऐसे लाइक दिस, देयर इज अ स्क्वायर ब्रैकेट जिसके अंदर लिखा हुआ है कोबाल्ट एंड 6 अमोनिया ग्रुप, एंड टोटल जो चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट पे दैट इज +3. सॉरी, यहाँ ये मैंने सुपरस्क्रिप्ट में नहीं लिखा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट बाय सीइंग दैट दिस इज
cobalt, ammonia 6 and complete bracket पे charge क्या है +3 and there is 3Cl minus. Okay. So मैं जो ऑब्जर्वेशन मैंने कोबाल्ट क्लोराइड और 6 अमोनिया के लिए देखी थी कि ये एक्सेस AgNO3 के अंदर 3 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट दे रहा है एंड इट इज बिहेविंग लाइक 1:3 इलेक्ट्रोलाइट, वो ऑब्जर्वेशन एक्सप्लेन हो सकती है जब मैं इस कंपाउंड को कैसे फॉर्मुलेट करूं, इस तरीके से। मतलब ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो मैंने लिख रखा है जिस कंपाउंड का, अगर ये सॉल्यूशन के अंदर, अगर ये एक्वा सॉल्यूशन में इस तरीके से एडजस्ट करे कि this is behaving like a single cation with +3 charge and +3Cl minus molecule, अगर ये एक्वा सॉल्यूशन में इसकी तरह बिहेव करे then I can easily explain my observation। क्योंकि अगर मैंने इसमें एक्सेस AgNO3 डाला तब क्या होगा, ये 3Cl माइनस एक्वा सॉल्यूशन में फ्री है, वो तीनों प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और मुझे क्या मिलेगा 3 मोल ऑफ AgCl। अगर मैं इसकी कंडक्टिविटी मेजर करती हूँ, so this is only one cation and there is there is 3 anion, so इसकी कंडक्टिविटी किसके correspond होगी 1:3 के। ये स्ट्रक्चर है इस कंपाउंड की जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि ये कैसे दिखता है। ओके, ये जो सॉलिड लाइन होती है ये उनको रिप्रेजेंट करती है जो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कंपाउंड होता है उसको हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड जो ये बाहर होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से आयंस, इनको हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इनके बारे में बाद में पढ़ेंगे कि कौन क्या है, बट for make you familiar with this compound मैंने इनकी स्ट्रक्चर भी पेस्ट कर दी। ओके, let's move on to next compound. This is cobalt chloride dot 5 ammonia that is purple in color. Okay, अब मैंने इसके लिए ऑब्जर्वेशन क्या क्या है हम रिकॉल करते हैं कि हमें इसके लिए क्या क्या ऑब्जर्वेशन दिखी थी। हमने देखा था कि ये कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से है, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करता है कि जब मैं ऐड करती हूँ एक्सेस AgNO3 टू दिस कंपाउंड तो ये मुझे 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट देता है एंड इन सॉल्यूशन इट इज बिहेविंग लाइक 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो वन डे में देखा कि जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी है उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है दिस कंपाउंड इज समथिंग लाइक दिस। ओके, कि कोबाल्ट के साथ ब्रैकेट्स के अंदर हो एक क्लोरीन एंड 5 अमोनिया मॉलिक्यूल जो कंप्लीटली बिहेव कर रहा हो, ये ब्रैकेट कंप्लीटली बिहेव कर रहा हो एज अ सिंगल ion which may be cation or anion because the charge in bracket depend upon the charge of the constituent, है ना, इसके अंदर क्या उसके ऊपर इस पे चार्ज होगा। ओके, and plus 2Cl minus। if this is the formula of this compound, तो अगर मैं इसमें एक्सेस AgNO3 डालती हूँ तो यहाँ क्या है 2Cl minus फ्री है सॉल्यूशन के अंदर, Cl minus is not free, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है वो फ्री नहीं है। ओके, बिकॉज उसने ये कहा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी ग्रुप्स होंगे वो फ्री नहीं होंगे, दे आर रिस्ट्रिक्टेड। ओके, पर जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आयंस होंगे वो फ्री होंगे, दे कैन गिव देयर टेस्ट। सो इफ अगर मैं AgNO3 सॉल्यूशन इसमें डालती हूँ तो ये दो जो Cl है वो क्या हो जाएंगे प्रेसिपिटेट, सो आई गॉट 2 मोल ऑफ AgCl PPT। ओके, एंड जब इसकी कंडक्टिविटी मेजर करते हैं हम तब हमें क्या मिलेगा, देयर इज 1 cation जिस पे चार्ज है +2 एंड देयर इज 2 anion। ओके, सो द conductivity of the solution is corresponding to 1:2। ये इसकी स्ट्रक्चर है, हम बाद में इस बारे में डिस्कस करेंगे कि दिस कंपाउंड इज लाइक दिस, कि कोबाल्ट से बॉन्डेड कौन है 5 अमोनिया एंड क्लोरीन एंड 2Cl minus is free। This is cobalt chloride dot 4 ammonia that is green and cobalt chloride dot 4 ammonia that is violet। सबसे पहले हम इन दोनों कंपाउंड की ही बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि हाँ
they have same empirical formula. इन दोनों के अंदर एक कोबाल्ट है, 3 क्लोरीन है और 4 अमोनिया है, जो कि एकदम सिमिलर है, बट दोनों का कलर क्या है, डिफरेंट है. सो यहाँ से मुझे एक डेफिनेशन याद आ रही है कुछ ऐसे बिहेवियर करने वाले कंपाउंड्स की. Those compounds which have same empirical formula but have different properties, such compounds are termed as isomers. No? Those compounds. Okay, here these both compounds have same empirical formula but have different properties. Such compounds are termed as isomer. They both are isomer. इसलिए इनका empirical formula तो हमें same दिख रहा है, but their chemical properties are different. इसलिए they are given different color. Okay. हमने इनके लिए इन दोनों के लिए सेम ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व की थी. हमने देखा था कि इन दोनों के लिए ऑब्जर्वेशन स्कीम थी वो ये थी कि जब इन दोनों कंपाउंड में अगर हम ऐड करते हैं एक्सेस AgNO3, then we got 1 mole of AgCl precipitate and this compound is behaving as 1:1 electrolyte. तब वर्नियर ने कहा इस ऑब्जर्वेशन को हम तब एक्सप्लेन कर सकते हैं if this compound are like this. Okay? अगर ये कंपाउंड इस तरीके से हो, मतलब कोबाल्ट के साथ 2 क्लोरीन एंड 4 अमोनिया हो इन स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड एक क्लोरीन क्या हो फ्री. ओके, एंड द चार्ज इन कोऑर्डिनेशन ब्रैकेट हम चेक कर सकते हैं कि वो सेम ही आ रहा है. हमने देखा तो कोबाल्ट किसके अंदर था, +3 के अंदर था, एंड क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1. तो 2 क्लोरीन पे क्या चार्ज होगा, -2. So +3 of cobalt and -2 of chlorine, that is +1, and ammonia पे चार्ज 0. तो total charge क्या आया, +1. So this compound is formulated as this, and when I add excess AgNO3 to this solution, to the solution of this compound, then I got only 1 mole of AgCl because यहाँ सिर्फ एक क्लोरीन ही फ्री है. Okay. एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ एक ही केटायन है एंड एक ही एनायन है. दिस कंप्लीट इज बिहेविंग एज ओनली 1 आयन. ओके, एंड हियर द चार्ज इज +1, सो इट इज केटायन. सो यहाँ केटायन भी एक ही है एंड एनायन भी एक ही है. ओके, सो दिस इज बिहेविंग लाइक 1:1 इलेक्ट्रोलाइट. एंड इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है. वी विल डिस्कस अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. So let's see कि हमने इन तीनों ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड किया. ओके, in this formulation the atom within the square bracket form a single entity which does not dissociate under the reaction condition. हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो फॉर्मुलेशन हमने इसके लिए सोचा है टू एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो भी कंपाउंड्स है, जो भी ग्रुप्स है, दे डज नॉट डिसोसिएट. वो रिएक्शन में, वो सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट नहीं होंगे. लाइक हमने देखा था, like this there is example of cobalt chloride और 5 ammonia. हमने देखा था कि इसका फॉर्मुलेशन अगर ऐसे करें तो we can explain this observation. ओके, और हमने देखा जो भी कंपाउंड ब्रैकेट्स के अंदर है, इन दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो कंपाउंड है वो डिसोसिएट नहीं होंगे इन सॉल्यूशन. इसलिए तो इस क्लोरीन ने अपनी प्यूबिलिटी नहीं दी एंड इस क्लोरीन ने कंडक्टिविटी में भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया. ओके, सिमिलरली लाइक दिस हियर जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ 2 क्लोरीन थे, उन 2 क्लोरीन्स ने, उन 2 मोल ऑफ क्लोरीन्स ने क्या नहीं दिया, पीपीटी नहीं दिया. इसलिए हमें क्या मिला, ओनली 1 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट, एंड इन्होंने कंडक्टिविटी में भी अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया. सो इन दिस फॉर्मुलेशन the atom within the square bracket form a single entity which does not dissociate under the reaction condition. जो
कंपाउंड्स या जो एटम्स होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो एक सिंगल एंटिटी, वो एक सिंगल आयन की तरह बिहेव करते हैं, वो सारे मिलके एक सिंगल आयन की तरह बिहेव करते हैं, ओके, एंड जो डिसोसिएट नहीं होता अंडर रिएक्शन कंडीशन, ओके. Also, the atom or group inside the square entity does not positive test of their individual ion, and they are going to behave as a single ion or group. जो एटम स्क्वायर एंटिटी के अंदर होते हैं वो अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते, जैसे जो आयंस हमने देखा था, जो क्लोरीन आयंस स्क्वायर एंटिटी के अंदर थे इन प्रीवियस प्रॉब्लम, वो अपना पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे रहे थे, एंड द कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट एक सिंगल आयन की तरह बिहेव कर रहा था. जब हम कंडक्टिविटी मेजर कर रहे थे तो वो कंडक्टिविटी के लिए वो कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट एक सिंगल आयन की तरह बिहेव कर रहा था, ओके. एंड द एटम और आयन outside of this square entity or bracket are ionizable and can show reaction or positive test of their individual ion. और जो एटम या आयन आउटसाइड होता है स्क्वायर ब्रैकेट से, दे आर आयनाइजेबल एंड कैन शो देयर पॉजिटिव टेस्ट. जैसे हमने यहाँ देखा, जैसे हमने इन एग्जांपल में देखा, जो एटम या आयन स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर थे वो आयनाइजेबल थे, ओके, एंड क्या दे रहे थे, अपना पॉजिटिव टेस्ट. जैसे जब मैंने AgNO3 डाला तब ये दो आयन तो अपना प्रेसिपिटेट दे रहे थे, एंड ऑल्सो when we are going to measure their conductivity, they are ionizable. ये दोनों दो क्लोरीन की तरह फ्री आयनाइज हो रहे थे इन सॉल्यूशन, ओके, इसलिए तो हमें कंडक्टिविटी 1:2 मिली थी. Now, and dissociate into ions in aqueous solution, and these atoms that are outside of the square entity dissociate into ions in aqueous solution. हमने देखा वो दो क्लोरीन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर थे वो aqueous solution में ions के तौर पे dissociate हो रहे थे. On these observation, जो भी observation हमने observe की, जो वर्नियर ने observe की, on this observation in 1898 Vernier proposed the theory of coordination compound. 1898 के अंदर इन्हीं ऑब्जर्वेशन पे बेस वर्नियर ने अपनी एक थ्योरी दी जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ही स्टेट दैट मेटल एटम स्लैश आयन हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसीज. मेटल एटम या आयन से जो भी बॉन्डिंग होती है, जो भी कंपाउंड्स जो उससे बॉन्ड है, जैसे इन COCl3.3 अमोनिया और COCl3.4 अमोनिया और 5 अमोनिया और 6 अमोनिया, जो कोबाल्ट से बॉन्डेड मॉलिक्यूल है, दैट इज 3 क्लोरीन एंड द अमोनिया, दे ऑल आर नोन एज वैलेंसी, ओके. तो उसने क्या प्रपोज किया कि मेटल एटम हैव टू टाइप ऑफ वैलेंसीज, कि जितने भी वैलेंसीज है एक मेटल एटम के पास, हम उसको दो तरीके से बांट सकते हैं, ओके, उसे दो टाइप के अंदर हम बता सकते हैं. फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकंड इज सेकेंडरी वैलेंसी. हम देखते हैं कि क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी. प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय एनायन. प्राइमरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने वाले होते हैं एनायन. एनायन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज. एंड वन थिंग आई वांट टू क्लियर, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तब आपको लग सकता है कि जो प्राइमरी वैलेंसी है वो एनायन होनी जरूरी नहीं है, बट अभी हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग वर्नियर थ्योरी, ओके. तो मैं भी यहाँ वही बता रही हूँ जो वर्नियर ने बताया, ना कि अब कैसा क्या हो सकता है. These are the statements that are given by Vernier, okay. प्राइमरी वैलेंसी, वर्नियर ने कहा कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड की जाती है बाय एनायंस. एनायंस क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज. सेकंड, it is ionizable. The primary valencies are ionizable, that is ionic bonding with metal atom or ion. वर्नियर ने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है, ओके,
एंड वो किससे बॉन्डेड होती है? आयनिक बॉन्ड से विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन। वर्नियर ने जो तीसरी बात कही वो ये कि इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। प्राइमरी वैलेंसी बिकॉज ये आयनिक बॉन्डिंग होती है इसकी सेंट्रल मेटल या आयन के साथ, एंड हमें पता है आयनिक बॉन्ड क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल। वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता कि डायरेक्शन एक्स है, वाई है या जेड है। बट जो डायरेक्शनल बॉन्डिंग होती है लाइक कोवेलेंट बॉन्डिंग इज अ डायरेक्शनल बॉन्डिंग, उसमें फर्क पड़ता है कि डायरेक्शन एक्स है, वाई है, जेड है, बिकॉज जो कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है वो होती है ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की वजह से, एंड ऑर्बिटल हैव अ डेफिनेट अरेंजमेंट इन अ 3D सिस्टम। उनकी एक डेफिनेट अरेंजमेंट होती है लाइक पी एक्स ऑर्बिटल इज अलोंग एक्स एंड वाई इज अलोंग वाई, जेड इज अलोंग जेड। सो दे हैव अ स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, उनका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अलोंग ओरिएंटेशन है। तो जो बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है या जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग होती है, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर बिकॉज that is something because of orbital overlapping and orbital are directional in nature. But जो ionic bonding होती है that is purely electrostatic force, and electrostatic force is seen in the whole sphere that of our radius. Means यहाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हमने पढ़ा है in 11th physics in the chapter और in 12th physics. The first chapter is electrostates. उसमें हमने क्या पढ़ा है कि कोलम्बिक फोर्स होता है k q1 q2 by r square. वो r पे डिपेंड करता है, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ, ना कि वो r थीटा एंड फाई पे डिपेंड करता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो कैसे ओरिएंट है उस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? नॉन डायरेक्शनल नेचर। ओके। फोर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड बाय प्राइमरी वैलेंसी। वर्नर ने कहा कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उनसे हम स्ट्रक्चर नहीं पता लगा सकते कोऑर्डिनेट कंपाउंड की। ओके। एंड यहाँ से हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं बिकॉज प्राइमरी वैलेंसी आर नॉन डायरेक्शनल, एंड स्ट्रक्चर के लिए जो जिससे स्ट्रक्चर डिटरमाइन होती है या जो स्ट्रक्चर डिटरमाइन करता है वो होते हैं डायरेक्शनल बॉन्ड्स। ओके। And because primary valency is a non-directional bond, is a non-directional in nature, so इसे हम structure नहीं determine कर सकते of coordination compound. Primary valency are represented by dotted line. Okay? अब हम जानते हैं कि secondary valency क्या होती है। Secondary valency, it is satisfied by anion or neutral ligand. वर्नियर ने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो किससे सेटिस्फाइड की जाती है? anion and neutral ligand. Okay. And it is non-ionizable, that is coordinate bonding with central metal atom or ion. वर्नियर ने कहा कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल नहीं होती। मींस अगर मैं एक कंपाउंड को सॉल्यूशन में डालती हूँ तो जो उसकी प्राइमरी वैलेंसी है वो तो आयनाइज हो सकती है, पर जो उसकी सेकेंडरी वैलेंसी है वो आयनाइज नहीं होती बिकॉज दे आर नॉन आयनाइजेबल। ये नॉन आयनाइजेबल क्यों है? बिकॉज दे आर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, दे हैव अ कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग विद सेंट्रल मेटल एटम। ओके। लाइक अगर मैं CH4 को एक्वस सॉल्यूशन में डालती हूँ तो क्या CH4 C+4 एंड H- में डिसोसिएट होता है? नो, नहीं होता, बिकॉज वहां CH4 में कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या है? वी नो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ओके। एंड कोवेलेंट बॉन्ड क्या नहीं होते? डिसोसिएट नहीं होते। सो secondary valency is non-ionizable, that is coordinate bonding with central metal atom or ion. Secondary valency is directional in nature. जैसा कि मैंने अभी बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डायरेक्शनल नेचर होता है, एंड कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, बिकॉज कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से ही बनते हैं। ओके। एंड जहां भी ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, बिकॉज ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल नेचर, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, उनका 3D के अंदर एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन होता है। सो जो बॉन्डिंग होती है बाय ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर। एंड सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेट बॉन्डेड होती है विद सेंट्रल मेटल एंड एटम या आयन, सो इट इज डायरेक्शनल इन नेचर।
Secondary valency tell us about coordination number. अभी तक हमें नहीं पता कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, बट मैं आपको थोड़ी ब्रीफिंग कर देती हूँ कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कि कितने लोन पेयर एक मेटल सेंट्रल मेटल एटम को मिल रहे हैं बाय द सराउंडिंग ग्रुप्स और मॉलिक्यूल। ओके, एंड हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कौन करता है? सेकेंडरी वैलेंसी। तो सेकेंडरी वैलेंसी ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए। सेकेंडरी वैलेंसी ही मेटल को क्या डोनेट करती है? इलेक्ट्रॉन पेयर। एंड जो सेकेंडरी वैलेंसीज के नंबर होते हैं वही हमें क्या बताते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। वी विल गो टू द मोर डिटेल ऑफ दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। जब मैं बताऊंगी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है तब हम देखेंगे। ओके, secondary valency tell us about the structure of coordination compound. Structure of coordination compound is decided or predicted by secondary valency. अब कंपाउंड स्ट्रक्चर में कैसा है? जैसे CH4 कंपाउंड स्ट्रक्चर में कैसा होता है? sp3 टेट्राहेड्रल होता है। जैसे CH4 होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। हमने देखा कि जो लाइक अगर बोरोन का कोई कंपाउंड है तो वो स्क्वायर वो ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, कोई ऑक्टाहेड्रल होता है। वो किससे डिसाइड होता है कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसी है। ओके, तो सिमिलरली द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिसाइड की जाती है कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कैसी है। एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग कौन करते हैं? सेकेंडरी वैलेंसी। सो द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डिसाइडेड और प्रेडिक्टेड बाय सेकेंडरी वैलेंसी। Secondary valency, the ion or group bounded by secondary linkage to the central metal atom or ion have a spatial arrangement corresponding to different coordination number. अब यहाँ हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो सेकेंडरी लिंकेज से जो ग्रुप और एटम बाउंड होते हैं उनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम। ओके, मीन्स जैसे हमने पहले देखा कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड 6 ग्रुप थे इन द प्रीवियस एग्जांपल ऑफ कोबाल्ट फ्लोराइड विद अमोनिया। ओके, तो उन सब की जो सेकेंडरी वैलेंसी, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आयंस थे उनकी डेफिनेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आयन से मॉलिक्यूल थे वो डेफिनेट अरेंजमेंट में ओरिएंट हो जाते हैं अराउंड सेंट्रल एटम, बिकॉज they have a definite or a spatial arrangement because they are coordinate bonded with the central atom. Okay, and उनकी क्या होती है? coordination number के according एक different arrangement होते हैं। like अगर कोई coordination number 4 है तो वो tetrahedral होगा, कोई अगर 6 है तो वो octahedral होगा। okay, and secondary valency are represented by solid line. दिस टू आर ओनली रिप्रेजेंटेशन। ये डिसाइड हमने ऐसे ही कर ली, हमें दोनों को डिफरेंट दिखाना था, बट इनके पीछे कोई लॉजिक, कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। Bonnier also postulated that octahedral, tetrahedral, square planar geometrical shape are more common in coordination compound. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उनकी एक स्पेशल अरेंजमेंट होती है अराउंड सेंट्रल मेटल एटम। ओके, तो बॉर्नियर ने क्या प्रपोज किया? बॉर्नियर ने ये बताया कि देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ दीज ओरिएंटेशन, जो होती है ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ओके, एग्जांपल अगर निकल कोबाल्ट सॉरी दिस इज कार्बोनिल, निकल कार्बोनिल 4 है तो दिस इज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, and this is PtCl4, this is the square planar geometry. Okay, and this is cobalt ammonia 6, this is octahedral geometry. अब हम एक एग्जांपल प्रॉब्लम देखते हैं और अपना कंसेप्ट रिवाइज करते हैं कि हमने क्या सीखा। ओके, ये एग्जांपल प्रॉब्लम एनसीईआरटी में भी गिवन है एंड इसके आंसर भी गिवन है। हम डिस्कस करते हैं कि आंसर कैसे सेटिस्फाई हो रहे हैं। On the basis of the following observation made with the aqueous solution assigned secondary valency to metal and the following compound.
हमें ये कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ गिवन है, देयर इज अ फॉर्मूला एंड यहाँ लिखा हुआ है कि कितने मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हमें मिल रहे हैं पर मोल ऑफ द कंपाउंड विद एक्सेस AgNO3, ओके। एंड हमें यहाँ ऑब्जर्वेशन बताएगी और हमें बताना है कि यहाँ कितनी सेकेंडरी वैलेंसीज है, ओके। फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ PdCl2.4 अमोनिया। इस एग्जांपल में हमने ये देखा कि जब मैं इस कंपाउंड दैट इज PdCl2.4 अमोनिया के अंदर एक्सेस AgNO3 डालती हूँ तो मुझे 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहाँ से ये तो क्लियर होता है कि 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट मिल रहा है, मतलब इस कंपाउंड इस फॉर्मूला के अंदर जो 2 क्लोरीन एटम है दैट आर आयनाइजेबल, मींस वो क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। सो टोटल है यहाँ 6 वैलेंसीज, 2 क्लोरीन एंड 4 अमोनिया, जिसके अंदर 2 तो क्या है, प्राइमरी। सो 6 minus 2 equal to 4, जो रही हुई 4 होगी वैलेंसीज, दे आर सेकेंडरी वैलेंसी। इसमें यहाँ सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 4। सेकेंड, निकल Cl2.6 H2O। जब इसमें एक्सेस AgNO3 ऐड करते हैं तब हमें 2 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट मिलता है, ओके। Here total number of valencies is 2 plus 6 equal to 8 एंड जिसके अंदर प्राइमरी वैलेंसी क्या है, 2, तो रही हुई क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसी। सो टोटल वैलेंसीज थी 8 एंड प्राइमरी थी 2, सो 8 minus 2 equal to 6, so secondary valency are 6. In this example, PtCl4.2 HCl gives 0 mole of AgCl precipitate, मतलब यहाँ कोई भी क्लोरीन प्रेसिपिटेट में नहीं जा रहा, मतलब जितनी भी वैलेंसीज है वो क्या होगी, सेकेंडरी वैलेंसीज, बिकॉज नो वैलेंसी इज प्राइमरी वैलेंसी। तो वैलेंसी यहाँ कितनी है, 4 क्लोरीन एंड 2 HCl, so secondary valency is 6. Here cobalt chloride dot 4 ammonia. Here the number of mole of AgCl that we got as PPT when we had excess AgNO3 is 1. मतलब यहाँ प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 1, एंड टोटल वैलेंसी कितनी है, 3 क्लोरीन प्लस 4 अमोनिया, दैट इज 7. सो सेकेंडरी वैलेंसी इज primary is total valency minus number of primary valency, that is 7 minus 1 equals to 6. So here secondary valency is 6. Here PtCl2.2 ammonia, यहाँ जब हमने एक्सेस AgNO3 ऐड किया तो हमें 0 मोल ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट मिला, मतलब सारी वैलेंसी इज, so here we got 0 mole of PPT, मतलब कोई भी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं है, कोई भी वैलेंसी प्राइमरी नहीं है, तो सारी की सारी वैलेंसीज क्या होगी, सेकेंडरी। टोटल नंबर ऑफ वैलेंसीज 2 क्लोरीन एंड 2 अमोनिया, दैट इज 4, सो सेकेंडरी वैलेंसी इज 4. सो आई होप दैट इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट क्या है. नाउ वी मूव ऑन to our next topic, that is double salt, okay. So I have one question in my mind, what is the similarity and difference between double salt and a coordination compound? हमने P block जो यूनिट 6 P block है उसके अंदर पढ़ा था, आई थिंक यूनिट 7 P block था, उसमें हमने पढ़ा था in the starting that chlorine is extracted from the mineral Candelite, that is KCl.MgCl2.6H2O, उसके अंदर क्लोरीन होता है, पर वो उसको हमने बोला था कि वो कंपाउंड इज अ डबल सॉल्ट, क्योंकि उसके अंदर 2 सॉल्ट है, KCl भी है और MgCl2 भी है, ओके. पर ये डबल सॉल्ट होते क्या है, एंड सी KCl.MgCl2.6H2O, ओके, यहाँ 6H2O मॉलिक्यूल थे. अभी हमने पहले ही देखा हमने पहले भी देखा इसके पास भी 6H2O मॉलिक्यूल है, क्या ये भी एक डबल सॉल्ट है, क्या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और डबल सॉल्ट सेम ही होते हैं. आई होप कि ये क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में भी आ रहे होंगे कि क्या कोऑर्डिनेशन एंड डबल सॉल्ट सेम है. नो, दे आर नॉट सेम, देयर इज सम सिमिलरिटी बट अ ह्यूज डिफरेंस, ओके. लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस. Similarity, double salt and complex or coordination compound both are addition compound, as they both are formed by addition reaction
This is both that is both of them are found by combination of two or more stable compound in stoichiometry ratio. Okay. सिमिलरिटी ये है कि डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों एडिशन कंपाउंड होता है. एडिशन कंपाउंड किनको कहते हैं? जो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड के एडिशन या ऐड होने पर जो कंपाउंड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? एडिशन कंपाउंड. लाइक टेक एग्जांपल ऑफ पानीलाइट, दैट इज KCl.MgCl2.6H2O. ओके, उसे बनाने के लिए we add KCl and MgCl and 6 molecule of H2O, तो वो कंपाउंड बन जाएगा. ओके, so it is a addition compound. Similarly, मुझे निकल फ्लोराइड और 6H2O बनाना है. उसके लिए भी मैं निकल फ्लोराइड को ऐड करूंगी with 6H2O molecule, then I got this coordination compound. So similarity ये है कि they both are formed by addition reaction. हम दो या दो से ज्यादा कंपाउंड को मिलाते हैं and we got this compound. Okay, but what is difference? Difference ये है कि डबल सॉल्ट individual in double salt individual atom does not lose their identity. जो individual atom है like in candlelight KCl, MgK है, Cl है, magnesium है, Cl है, 6H2O molecule है, इन सब की अपनी अपनी आइडेंटिटी बरकरार रहेगी. ओके, आइडेंटिटी बरकरार रहेगी इसका मतलब हम देखते हैं and dissociate into all its constituent ion completely. Double salt dissociate into all its ion completely. इसमें जितने भी ions present है, अगर मैं इसे aqueous solution में डालती हूँ तो ये इन सब के अंदर dissociate हो जाएगा. मतलब K plus अलग, Cl minus अलग, magnesium अलग and H2O अलग. ऐसा नहीं होगा कि KCl MgCl एक whole entity की तरह behave कर रहा है या कुछ और. ओके, जैसा कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखा था कि कोई कैटायन या जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होते थे वो एक कंप्लीट एंटिटी की तरह बिहेव करते थे, वो डिसोसिएट नहीं होते थे. बट दिस इज नॉट द केस इन डबल सॉल्ट. ओके, and double salt give positive test for all its ion and group in aqueous solution. ये डबल सॉल्ट जैसे टेक दिस एग्जांपल, ये अपने सारे कॉन्स्टिट्यूएंट एटम या आयंस का टेस्ट पॉजिटिव देता है. मींस इफ आई एडेड दिस इज लाइक सपोज मैंने इस कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डाल रखा है. ओके, मैंने इसे वाटर में ऐड कर रखा है, सो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा. इफ आई ऐड एक्सेस AgNO3 टू दिस कंपाउंड, so I got 2 mole of AgCl precipitate. Okay, if I test for potassium, I got positive test. वो बोलेगा yes, potassium is present as ion. If I test for magnesium, then I got positive test. Okay, so it give all positive test for all its ion group in aqueous solution. Example of double salt है candlelight, जिसके बारे में भी हम डिस्कस कर ही रहे हैं, KCl.MgCl.6H2O. potash alum, that is फिटकरी, more common in Hindi हम इसे फिटकरी कहते हैं, which is a double salt जिसका फॉर्मूला होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 6H2O. ओके, एंड मोहर सॉल्ट FeSO4 डॉट अमोनियम ferrous sulfate dot ammonium sulfate dot 6H2O. Okay, it give positive. I will discuss about this line. Let's have a look at coordination compound. Individual atom lose their identity, and when dissolved in aqueous solution, it does not dissociate completely into its constituent and give negative test for ions and group inside square bracket. Individual atom अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं. दैट इज अगर मैं इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिसॉल्व करती हूँ इन एक्वस सॉल्यूशन, ये डिसोसिएट नहीं होता कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता. मतलब इसके अंदर जितने आयंस थे वो कंप्लीटली अलग अलग नहीं हो जाते. कुछ आयंस अलग होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी का कंसेप्ट. सो प्राइमरी वैलेंसी तो अलग हो जाती है एंड जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो अलग एंटिटी की तरह बिहेव कर रहा होता, बट दे आर नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली. ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुए, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं. पार्शियली डिसोसिएशन मतलब अगर मैं K4FeCN6 को वाटर के अंदर
ऐड करती हूँ तो ये 4K प्लस एंड FeCN6 माइनस 4 के अंदर डिसोसिएट हो जाता है, बट दिस इज पार्शियल डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन बिकॉज ये पार्शियली टूटा है। अगर ये इस तरीके से डिसोसिएट होता 4K प्लस Fe प्लस 2 6CN माइनस, तो उसे हम क्या बोलते, तो उसे हम क्या बोलते, अगर ये 4K प्लस Fe प्लस 2 6CN माइनस में डिसोसिएट होता है तब हम उसे बोलते कंप्लीटली डिसोसिएशन, ओके। एंड it gives negative test for ion and group inside square bracket. जो आयंस और ग्रुप इसके ब्रैकेट्स के अंदर है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो अपना टेस्ट नहीं देते, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल एटम लूज देयर आइडेंटिटी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिकॉज Fe+2 ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, अब वो Fe+2 का टेस्ट नहीं देगा, ओके, बिकॉज द Fe इज प्रेजेंट इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। बट जो एटम या आयंस आउटसाइड होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी, दे कैन गिव देयर पॉजिटिव टेस्ट। अगर मैं आप पोटेशियम का टेस्ट करूं in this aqueous solution of this compound तो वो पॉजिटिव आएगा, बट if it is for CN then वो नेगेटिव आएगा, if it is for Fe+2 then वो नेगेटिव आएगा। सो मैं यही डिस्कस कर रही थी कि if in Mohr salt I test for Fe+2 ion I got positive test because यहाँ सारे के सारे एटम don't lose their identity, they retain their identity। यहाँ सभी atoms की identity retain होती है, no one lose their identity। So this one gives positive test for Fe+2, but here if I test for Fe+2 I got a negative test because Fe+2 is present inside the square bracket and the ion inside the square bracket in coordination compound give negative test, okay। So this is the difference, this is the main difference between coordination compound and double salt। Do you remember all this? And जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया about the one-year theory and the double salt, this was also given to some extent in NCERT book, so please revise it before my next lecture। अगर हम रिवाइज करेंगे तो ये इजी रहेगा मेरे और आपके लिए, दोनों के लिए, मेरे लिए समझाना और आपके लिए समझना। एंड रिवाइज करने से जो लर्निंग की स्पीड होती है वो भी एनहांस हो जाती है। सो डू रिवाइज दिस, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट टर्म pertaining coordination compound, okay। So thank you